کہ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا ہے۔ بجلی 1 روپے 81 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا گیا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اطلاق صرف اگست کے بلوں پر ہی ہوگا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا گیا ہے۔ بجلی 1 روپیہ 81 پیسے فی یونٹ کر دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جبکہ اطلاق صرف اگست کے بلوں پر ہوگا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا گیا ہے۔ بجلی 1 روپیہ 81 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ۔ 1 یونٹ کا نرخ 50 روپے سے بھی بڑھ گیا۔ ایک طرف نت نئے سرچارجز آئے تو دوسری طرف ٹی وی اور ریڈیو کی لائسنس فیس کا بوجھ بھی بجلی صارفین پر ڈال دیا گیا ہے۔ بجلی پر سبسڈی بھی ختم کر دی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر مجموعی طور پر 3000 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اتحادی حکومت کے دور میں بجلی کے نرخوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت 50 روپے سے بھی بڑھ گئی۔ 16 ماہ میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں تقریباً 13 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 32 روپے 21 پیسے فی یونٹ کا اضافہ سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بجلی کے دام 16 روپے 34 پیسے فی یونٹ بڑھائے گئے۔ اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں صرف 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی۔ اس عرصے میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں صارفین پر 320 ارب روپے کا بوجھ جبکہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں صارفین پر 500 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ اسی دوران بجلی کے بلوں پر 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد ہوا اور 15 روپے فی بجلی بل ریڈیو سرچارج بھی لگا دیا گیا۔ بقایا جات کی مد میں 8 ماہ میں 14 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی دور میں بجلی بلوں پر صنعتی صارفین کو دیا جانے والا 5 روپے کا رعایتی پیکج اور 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ کسان پیکج ختم کر دیا گیا۔ اتحادی حکومت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر مجموعی طور پر 3000 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا گیا۔ 16 ماہ کی کارکردگی پر وفاقی وزیر توانائی کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ فیصلہ سازی میں مشکل درپیش رہی تاہم بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہے۔ ہر دور کی طرح اتحادیوں نے بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تو کیا لیکن بجلی چوری اور گردشی قرضے جیسے مسائل بے قابو ہی رہے۔ تو مہنگائی کے وار مسلسل جاری ہیں۔ پانی کے بلوں میں بھی اب اضافہ کر دیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے آغاز میں نیا ٹیرف نافذ العمل کر دیا گیا۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کے ہر شعبہ زندگی پر وار۔ واسا نے واٹر ٹیرف میں باقاعدہ طور پر اضافہ کر دیا۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں واٹر ٹیرف میں اضافے کی منظوری دی گئی تھی۔ واسا، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ اور ملتان میں نیا واٹر ٹیرف نافذ کر دیا گیا۔ گھریلو اور کمرشل صارفین کے واٹر ٹیرف میں اضافے کی منظوری دی گئی۔ جنرل سٹور، ہارڈ ویئر شاپ، میڈیکل سٹور، ٹیلر شاپ ماہانہ اوسطاً 1303 روپے واسا کو بل ادا کریں گے۔ تعلیمی ادارے، ڈاکٹرز کلینک، پراپرٹی ڈیلرز، سٹیل گرل مینوفیکچرز ماہانہ اوسطاً 3258 روپے بل ادا کریں گے۔ پرائیویٹ ہسپتال، کلینک، لیبارٹری، حمام، دھوبی گھاٹ ماہانہ 5345 روپے پانی کا بل ادا کریں گے۔ ریسٹورنٹ، پلاسٹک مینوفیکچرز، شوز مینوفیکچرز، پاور لوم، ماچس فیکٹری ماہانہ 7435 روپے پانی کا بل ادا کریں گے۔ 1000 مربع فٹ پر واقع ریسٹورنٹ، فاؤنڈری سٹیل مل، ربڑ مل ماہانہ 10455 روپے ادا کریں گے۔ سیمنٹ اور پائپ فیکٹری، گھی اور آئل مل ماہانہ 13480 روپے پانی کا بل ادا کریں گے۔ پنجاب کابینہ کے میٹنگ منٹس جاری ہونے کے بعد رواں مالی سال کے آغاز میں نیا ٹیرف نافذ العمل کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ۔ سبزیاں، برائلر گوشت، انڈے سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے۔ شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ترین ہو گیا۔ صارفین کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کے مسلسل وار عوام مشکلات کا شکار۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ریٹ لسٹ میں 11 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ کریلے 20 روپے اضافے سے 100 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں 160 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ ٹینڈے دیسی، بھنڈی، شملہ مرچ، پھول گوبھی، اروی، گھیا توری، بینگن، پالک اور کھیرے 10 روپے فی کلو مہنگے۔ آلو کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ، 75 کے بجائے 100 روپے فی کلو تک دستیاب۔ پیاز 90 روپے، ٹماٹر
160 रुपए, लहसुन 550 रुपए, अदरक 1100 रुपए और सब्ज मिर्च 120 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। 2 वक्त तो दूर, 1 वक्त की रोटी का इंतजार करना भी मुश्किल हो चुका है। नहीं जी, 2 वक्त की रोटी तो बहुत मुश्किल होगी। 1 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, 2 वक्त की तो बहुत दूर की बात है। इंसान घर से 1000 रुपया जेब में डाल के आता है, आगे आता है वो 1500 का सामान होता है, वो परेशान हो जाता है कि क्या लेकर जाऊं क्या ना लेकर जाऊं। महंगाई बहुत हो गई है सर, हम मजदूर आदमी है कि कोई सरकट नहीं चलता हैगा हमारे घर का। ठीक, गरीब बंदा जो है वो उसका खाना पीना मुश्किल हो गया है। जैसे चिकन दे लें 700 और मटन तो गरीब बंदे की पहुंच से ही बाहर है कि वो तो बस जब ईदे कुर्बान आती है तब भी वो खाता है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 564 रुपए फी किलो पर बरकरार। फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपए का इजाफा, 285 रुपए फी दर्जन हो गए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अहम खबर यह है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी गई। सदर ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत की है। तो आपको इस हवाले से बताएं कि कौमी असम्बली तहलील कर दी गई, जबकि सदर ने असम्बली पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है, जबकि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्टिकल 58(1) के तहत की है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है, इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, बताइए। जी, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अभी कुछ देर कबल कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से जो समरी भिजवाई गई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, उस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत दस्तखत करके कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। जबकि इस तहलील होने के साथ ही तमाम जो वफाकी कबीना है वो भी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ वज़ीर आज़म उस वक्त तक रहेंगे जब तक निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो जाता। जैसे उनका नाम सामने आएगा उनकी तक जो हल बर्दारी होगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इस हवाले से सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो असम्बली तहलील की गई उसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया, जिसमें दर्ज किया गया कि आइन की आर्टिकल जो उनसे उसके तहत 58 के तहत क्लॉज 1 के तहत जो कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया है। जी ठीक है, मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया ज़रूरिया का हसूल अवाम के लिए दर्द सर बन गया। आटे और चीनी की खरीदारी के लिए सार्फिन लंबी लाइनों में घंटा इंतजार करने पर मजबूर हो गए। आटे की सप्लाई इंतहाई महदूद है तो चीनी दस्तयाब ही नहीं। महंगाई के सताए अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खार। मार्केट से कम निरखों पर अशिया ज़रूरिया का हसूल इम्तिहान बन गया। सब्सिडाइज आटे और चीनी की खरीदारी के लिए स्टोर्स पर लंबी कतारें। गर्मी और हब्स में मर्दो खवातीन घंटों इंतजार पर मजबूर हैं। आटे के लिए टोकन लेना भी मुश्किल मरहला है। वहदत रोड यूटिलिटी स्टोर पर आटे के थैले रोजाना की बुनियाद पर इंतहाई कम सप्लाई किए जा रहे हैं। सस्ती चीनी दस्तयाब ही नहीं, घी भी महदूद मिकदार में मिल रहा है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपए मुकर्रर है। आम सारिफ के लिए चीनी 91 रुपए फी किलो है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ के लिए चीनी 70 रुपए फी किलो है। अवाम कहते हैं घंटों इंतजार के बाद भी कभी आटा मिलता है तो कभी खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। आटे की खरीदारी भी दीगर अशिया की खरीदारी से मशरूत है। चीनी आटा थानू कभी भी आटा मिल जाता, कभी नहीं मिलता, हमें चले जाने हैं। हाँ, परसों भी आए, परसों भी नहीं मिला, वो तो दूसरी तीसरी बार फिर भी नहीं मिला। आटा सारा देंदे ने इधर उधर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਕਾਰਡ ਤੇ 2 ਤੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और आम सारिफ के लिए अशिया ज़रूरिया के अलग अलग रेट मुकर्रर किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। अवाम पाकिस्तान तंजीम के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार शहरियों की रैली में शिरकत। रैली के शुरका ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खूब नारेबाजी की। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए।
अवाम पाकिस्तान तंजीम के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली। मोटरसाइकिल सवार शहरियों की बड़ी तादाद रैली में शरीक। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम थाम रखे थे। एहतजाजी रैली के शुरका ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाजी रैली के शुरका ने कहा कि महंगाई में इजाफा ही होता जा रहा है। बिजली की कीमत आसमान से बातें कर रही है। महंगाई के हाथों मजबूर होकर सड़कों पर आए हैं। हम अपने लिए ये सड़कों पे नहीं निकले हुए, आवाम के लिए निकले हुए हैं। ये 2 साल हो गए हैं, हम बहुत परेशान हुए हैं। चिकन तो हम खा नहीं सकते थे, ये सब्जियां महंगी हो गई हैं। दाल महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगी है। हमने कहाँ से खाना है? अवाम पाकिस्तान तंजीम के चेयरमैन मजीद गोड़ी ने कहा, गरीब के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब अवाम की आवाज बनकर बाहर निकले हैं। अवाम पाकिस्तान के नाम से मैं तहरीक चला रहा हूँ कि पाकिस्तान की अवाम उठे महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ। मुझे साफ पानी नहीं दे सके, सस्ती बिजली नहीं दे सके, डैम नहीं बना सके। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान तंजीम का मजीद कहना था कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुक्मरानों को अवाम का भी सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर में अमन व अमान के क़याम के लिए फ़राइज़ अंजाम देने वाले सिविल डिफेंस रज़ाकार बुनियादी तनख्वाह से महरूम हैं। वज़ीर आला की जानिब से मुलाज़मीन को कम से कम उजरत अदा करने के अहकाम जारी किए गए। सिविल डिफेंस रज़ाकार अब तक बुनियादी तनख्वाह से महरूम है। सिविल डिफेंस रज़ाकार की बुनियादी तनख्वाह 32,000 रुपये मुख्तस, मगर रज़ाकारों को बुनियादी तनख्वाह अदा ना की जा सकी। अफसरान के घरों में ड्यूटियाँ अंजाम देने वाले रज़ाकारों को डेली वेजेस कर दिया गया है। डेली वेजेस को 32,000 जबकि रज़ाकार को 17,900 रुपये उजरत दी जा रही है। सिविल डिफेंस रज़ाकारों ने मुतालबा किया है कि उन्हें बुनियादी तनख्वाह 32,000 रुपये अदा की जाए। अब बात करें डॉलर की, तो करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। रुपए की बेकदरी के बाद डॉलर के रेट में 45 पैसे की मामूली कमी सामने आई है। तो तफसीलात के मुताबिक बैंकारी औकात के पहले सेशन में डॉलर की कदर में 1.5 रुपये तक की कमी हुई है। ताहम उसके बाद डॉलर की कदर फिर मुस्तहकम हुई और रिकवरी होते हुए इंटर बैंक में डॉलर रेट 287 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। ताहम ओपन मार्केट में डॉलर रेट बदस्तूर 296 रुपये पर बरकरार है। शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ा रिलीफ। नैब कोर्ट से रिलीफ के बाद शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज़ भी रिलीज़ कर दी गई। नैब अदालत में केस ज़ेर समाअत होने के सबब शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज़ किया गया था। नैब ऑफिस ने शहबाज शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज़ डी फ्रीज़ करने के लिए LTA को मरासा लिख दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और दीगर की प्रॉपर्टीज़ को डी फ्रीज़ कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज ने नाम पर मॉडल टाउन H ब्लॉक की प्रॉपर्टी नंबर 96 और 87 को डी फ्रीज़ कर दिया गया, जबकि हमजा शहबाज की मलकियती जौहर टाउन के ब्लॉक में 9 प्लॉट्स को डी फ्रीज़ किया गया है। हमजा शहबाज ही के जुडिशल कॉलोनी फ़ेज़ 1 में मौजूद 4 प्लॉट्स भी डी फ्रीज़ कर दिए गए, जबकि सैयद मोहम्मद ताहिर नकवी की गौसुल आज़म कॉलोनी गुलबर्ग 2 में प्रॉपर्टी नंबर 114A को भी डी फ्रीज़ कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का कहना है कि इंतशार और फसाद की सियासत को कौम ने मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हसन रजा की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई हलकों में यूथ कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिए। मरीम नवाज की तमाम अजला के यूथ कोऑर्डिनेटर्स को पार्टी का पैगाम हर जगह पहुंचाने की हिदायत। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि मेरिट पर नौजवान लीडरशिप को आगे लाएंगे। उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स को कहा कि रवायती सियासत बदल रही है, अब आपको भी सियासत का अंदाज बदलना होगा। मरीम नवाज शरीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार हैं। मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे कानून साजी की है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मरीम नवाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा अहमद हसन ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने उस वक्त मुल्क को संभाला जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था। सख्त फैसले करके अपनी सियासी साख को मुतासर किया, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए हर मुमकिन फैसले किए गए। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा अहमद हसन की कैंप ऑफिस ऐवान इकबाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि अवाम के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए जो खिदमत हो सकती थी वो की है। 24 जून से आज तक 4000 लोग कैंप ऑफिस में शिकायत लेकर आए। कोशिश की सबको हल किया जाए। अनप्रेसिडेंटेड लोगों की हाजिरी थी
जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए मसाइल के हवाले से, पहले जो चंद दिन थे वो लोग मुबारकें देने आ रहे थे, उनकी ये मुझे स्ट्रेंथ बता रहे थे 3-4 हज़ार से ऊपर थी। ख्वाजा अहमद हसान ने मजीद कहा कि अब निगरान सेटअप आएगा, बहुत इम्कान है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने उस वक्त मुल्क को संभाला जब मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। शहबाज शरीफ ने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फैसले किए। आपको जिस दहाने पे ले आए थे, आप ऑलमोस्ट खाई के अंदर गिरने वाले थे, और वहाँ से आपको रोकना और उस खाई से बचना और बचाना सबसे पहला टारगेट तो ये था, और मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसमें आपने सख्त फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी ख्वाजा अहमद हसान का मजीद कहना था कि आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का होगा। घर घर जाकर बताएंगे कि हमने बहुत मेहनत करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ सैन अली, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ को एक और सियासी झटका लग गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने हाफिजाबाद से तहरीक इंसाफ की कई विकटें उड़ा दी हैं। ज़िला सेक्रेटरी अफजाल अहमद, नायब सदर राय नवाज खरल और सिकंदर हयात तारर IPP में शामिल हो गए हैं। हाफिजाबाद तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ज़िले अहदेदारों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। अब्दुल अलीम खान ने पार्टी में शामिल होने वालों को खुश आमदीद कहा है और उन्होंने कहा है कि हमने पार्टी का मंशूर दे दिया। मजदूर और किसान की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है।